Okay, today we are going to solve the past papers of chapter coordination and control, and it's from the biology course number 5090 and 0610. So let's have a look on first question. इसमें ये कह रहे हैं कि the nervous system coordinates the responses of animal to change in their environment. Figure figure 2.1 shows the arrangement of the nervous system in a mammal. Nervous system in a mammal. Complete the figure 2.1 by writing the name of the missing parts of the mammal nervous system in the boxes. Nervous system. There are two types of nervous system. Central nervous system and another one is the peripheral nervous system. Central nervous system includes brain and spinal cord. And the second one, the peripheral, contains cranial nerves and the spinal nerves, which involves both the motor nerve fiber and sensory nerve fiber and Rayleigh nerve fiber, all of them. Cranial nerve contain motor nerve fiber, sensory, and if it's entered into the brain, it's do contain Rayleigh nerve fiber. As far as spinal nerve fibers are concerned, when the nerve fibers get entered into the spinal cord, three types: Rayleigh, sensory, as well as motor. So here they are not asking for the types of the nerve fiber, but still they have given the name of the nerve fibers. That is the cranial nerve fiber, that is the head portion and the top portion of the body, and the spinal nerve fiber that present in the spinal cord. So it's of 3 marks if you put the three boxes and name three correct name in 3 boxes, you will get the 3 marks. ठीक है, आपको 3 marks बहुत आसानी से जो है इसमें फिर मिल जाएंगे. Now the next question. Okay. This one. Figure 2.2 is a flow chart that shows how an involuntary action is controlled. Painful stimulus, then pain receptor that receive the stimulus. Now here X, it's an empty box, we have to fill it. Rayleigh neuron, motor neuron. Rayleigh neuron passes the message to motor neuron. Motor neuron passes the message to the muscle, and muscle produces the response. So definitely the pain receptors is receiving the stimulus and transfer it to sensory neuron or sensory nerve fiber. Okay. Now the next question. Okay, now the first question is that state the structure found in X. Sensory neuron. State the type of involuntary action shown by the flow chart. Involuntary action is both the peripheral or what can I say, reflex action, because this part doesn't show or doesn't involve any sort of brain. That's why it's the reflex action. State 2 ways in which a voluntary action differs from the involuntary action.
Voluntary action differs from involuntary action. Voluntary action is controlled by brain and can be stopped intentionally. Okay, another one is the wish and will involves in the voluntary action, whereas in involuntary action there is no wish and will is involved and it can't be stopped by the person intentionally. Okay, now here another question, and it is related to the homeostasis. Figure 2.1 shows a diagram of the liver and the body vessels that enters and exit from it. So look at the diagram. This is the liver. This one is the liver, and it has got two major vessels. ठीक है, इसमें दो major मोटी मोटी vessels नजर आ रही हैं. एक तो ये वाली vessel है और एक ये वाली vessel है. अच्छा, इस vessel से जो है सब vessels जो है वो निकल रही हैं. एक तो ये लिवर है और दूसरा ऑर्गन इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, ये जो बड़ी वाली वेसल है, वेसल नंबर 1 जो है, इसमें से एक सब वेसल आती जाती जो है वो दिखाई गई है, और यहाँ से भी एक कनेक्टिंग वेसल है, और इस वाली वेसल 2 से जो है एक वेसल कनेक्ट कर रही है लिवर को, और इसी तरीके से इसी वेसल से एक वेसल कनेक्ट कर रही है, सब वेसल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर रही है. Actually, it's this question is related to the digestion topic, assimilation. Okay, assimilation से relate करता है and absorption too. Assimilation and absorption, in which glucose regulation and conversion of glucose into glycogen takes place in the liver. Okay, so the next question is about the glucose concentration. Figure 2.1 shows the diagram of the liver and the blood vessels that enters and exit from it. Okay, अच्छा, इसमें दो वेसल्स हैं, एक वेसल ये वाली है, दूसरी वेसल ये वाली है. ठीक है, वेसल 1 एंड वेसल 2. अच्छा, वेसल 2 जो है उससे एक वेसल सब वेसल निकल रही है जो लिवर के अंदर जा रही है, और इसी तरीके से वो नीचे जाके एक और ऑर्गन यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और लिवर के अंदर, यहाँ से वेसल जा रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर एक वेसल निकल के लिवर में आ रही है, और ये वेसल जो है ये आगे जाके हार्ट में जा रही है. ओके, सो दे वर आस्किंग अबाउट द functions of the vessel K, L, name as well as their functions, if I'm not wrong. Okay, अच्छा, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली डाइजेशन से रिलेट है, और डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन का जो टॉपिक है, उससे रिलेट करता है. इन विच होता ये है कि दो हार्मोन जो है वो पेनक्रियाज रिलीज करता है. पेनक्रियाज रिलीजेस, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन? एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन. इंसुलिन के दो फंक्शन होते हैं. एक फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करती है by allowing glucose to enter in the cells. Okay,
और इंसुलिन का दूसरा फंक्शन जो है, सेकंड फंक्शन ऑफ इंसुलिन is the conversion of excess glucose to glycogen. ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इसमें स्टोर करवा देती है. ठीक है, अच्छा, और दूसरा हार्मोन जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है पेनक्रियास. Glucagon is also responsible for regulating the glucose level whenever it is required from the glycogen to glucose. ठीक है, अच्छा. Now the next one is the asking the question. पहला क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि name the blood vessel L. It's towards the liver. It is called the hepatic portal vein. Blood vessel J is a vein. Blood vessel J is a vein. ये vein है. State two structure feature of the vein and explain how each feature is related to its function of returning blood to the heart. ठीक है, इसका जो फंक्शन है हार्ट से, मतलब इसका ये किस तरीके से इसके दो फीचर्स जो है बयान करने हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो ब्लड है उसको हार्ट की तरफ लेके जा रही है. स्टेट दैट मीन्स के शॉर्ट आंसर लिखना है. टू स्ट्रक्चरल फीचर्स. स्ट्रक्चरल फीचर दैट मीन्स के वेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करते हुए बताना है, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये फीचर जो है इस फंक्शन को किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं कि ब्लड जो होता है वो हार्ट की तरफ वापस चला जाता है. फीचर वन जो है इसका ये है ब्रॉड ल्यूमेन थिन वॉल्स. Explanation provides more space and less blood pressure to the heart when blood moves. Okay, and another feature is okay. Now the second one is second feature is the presence of semilunar valves. ठीक है, semilunar valves stops backward flow of blood while moving towards heart without excessive pressure. Okay, another question is blood samples were taken from each of the blood vessels. हर blood vessel से, यदि कौन कौन सी vessel से, J से, K से, L से, M से, 2 hours after the meal. 2 घंटे खाने के बाद जो है इनसे अलग अलग सैंपल्स लिए गए, जैसे खाजे ब्लड के, और उसमें ये देखा कि शुगर और दूसरी चीजें कितनी है. टेबल 2.1 शोज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. स्पेसिफिक इन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज देखी है इन दी सैंपल्स ना. अच्छा, जे के अंदर ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है 135 मिलीग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब. के अंदर कम है 128, एल के अंदर 181 है और एम के अंदर 133 है. अच्छा, अगर मैं इसको जरा सा देख लूं कि एल के जे के एल और एम की मैं अगर बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन अगर मुझे नजर आ रही है तो वो किस में नजर आ रही है? सबसे ज्यादा एल में नजर आ रही है. ठीक है, तो देखते हैं एल पार्ट कौन सा वाला है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज हेपेटिक पोर्टल वेन. यस, दिस वन, जो कि इंटेस्टाइन से जिसे कहा जाए कि
जैसे कहा जाए कि सारा डाइजेस्टेड फूड जो है वो लिवर में लेके एंटर हो रही है। सो ये कौन सी है, हेपेटिक पोर्टल वेन। इसमें सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए कि ग्लूकोज की जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बताई गई है, और होनी भी चाहिए सारे जितनी भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है, और इसमें अमीनो एसिड भी बहुत ज्यादा होगा, इसमें दूसरे मटेरियल जो होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, और जे के अंदर कितनी उन्होंने 135 बताई है, यानी कि जे में एकदम से जो है कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है 135 मिलीग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, और इसमें जो है जे में ये है। और के अंदर कितनी है, 181 मिलीग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसमें बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं 181 में से 135 को माइनस करूं सपोज, तो इट विल बी हाउ मच लेफ्ट, जल्दी से बताओ करके। Okay, so it's 46 milligrams per 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो यहाँ पे कहीं स्टोर हो गया। ये किसमें स्टोर हुआ होगा, बेसिकली ये स्टोर हो गया होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मैं राइट, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर ये स्टोर हो गया होगा, और बाकी 135 जो है ये आपकी एओर्टा के अंदर जा चुका होगा। ये जो है ये क्या है, ये है वेना कैवा, ठीक है, और ये जो है ये है आपकी एओर्टा। ओके, सॉरी, it's not aorta, this one is the aorta, that is it comes from the heart, sorry, this comes from the heart, that is this one is the aorta and this one is the vena cava. Yes, vena cava, because here is the hepatic portal vein and hepatic vein, and then it's joined to the big vein, that is the vena cava. वेना कैवा के अंदर 135 मिलीग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसमें से 46 मिलीग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो चुका है। नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। अब इसमें परसेंटेज इंक्रीज का मालूम करना है इन ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द ब्लड वेसल जे एंड द ब्लड वेसल एल। जे और एल के दरमियान जो है ब्लड ग्लूकोज परसेंटेज इंक्रीज जो है उसको मालूम करना है। दैट मीन्स उसका इंक्रीज तो हमने मालूम किया, तो वो है 46 मिलीग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है मतलब जिसे कहा जाए कि आपके स्टोर फॉर्म में चला गया है, और फिर उसके बाद जो है ये जो है अब ये बोल रहे हैं कि एल और जे के दरमियान जो है परसेंटेज इंक्रीज जो है, यानी एल में जो है जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ था और फिर जे में जाके वो इतना कम हो गया, तो वो क्यों कम हुआ और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कैसे हुआ इन ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन between the blood vessel J and L, express your answer to the nearest whole number। ठीक है, अब इसको नियरेस्ट होल नंबर के करीब जो है निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम 181 को माइनस करेंगे 135 से, और फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 135 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो इट विल बिकम 34.1. yes, 34%। 34% is the percentage increase in blood glucose concentration. Okay, 34% answer. Now the next one, control of blood glucose by liver is an example of homeostasis. Explain how liver lower blood glucose concentration when it is too high. Because of the liver, when glucose concentration in blood is very high, liver converts excess glucose into glycogen by using hormone system, hormone insulin
and glucagon vice versa. दैट मीन्स के जब जो है कम हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन, तो इन दोनों हार्मोन्स में से इंसुलिन यूज करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और उसको लोकेट करवा देता है, और फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर दूसरा हार्मोन यूज करके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देता है. दैट मीन्स के लिवर इज responsible to maintain very high concentration of blood glucose or low concentration of blood glucose, ठीक है, by using two hormones, insulin plus glucagon. ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स की यूज करने से वो जिसे कहा जाए कि whenever it is required the conversion takes place and the blood glucose level is if it is low it gets rise, and if it is very much high then it gets low. Actually what happens in first condition, blood glucose high, insulin increases uptake of glucose in cells. Number 2, blood glucose level low, so liver converts glycogen into glucose by using hormone glucagon in collaboration of insulin. ठीक है, दोनों वाइस वर्सा काम कर रहे होते हैं. ठीक है, इसकी कोलैबोरेशन इंसुलिन के साथ भी हो रही होती है. क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बहुत सारी इंसुलिन वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में फेंकता है, तो ब्लड ग्लूकोज राइज होता है. ग्लूकोज राइज. अब जैसे ही राइज होता है तो इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन इंक्रीजेस cellular uptake of glucose. Okay, so all of them are correlate with each other. That means insulin plus glucagon works together in balancing blood sugar level of body. Another question is, name one other factor in the human body that also controls the homeostasis. One is temperature, second one is pH or water concentration, osmoregulation. Okay, another question is figure 3.1 shows the front part of the eye. ठीक है, सामने का हिस्सा जो आंख का होता है वो दिखाया है. LS है, longitudinal section है. LS है ये आई का हाफ. ठीक है, दैट मीन्स कि ये पूरी आई बॉल जो है ये पीछे तक ऐसे बनी हुई होगी. इन्होंने क्या करा है कि इसको जो है शॉर्ट कर दिया है. ओके, so whether the eye shows in figure 3.1 is far adapted, which means that the lens is focused light from the
डिस्टेंस, दूर की जो ऑब्जेक्ट है, दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको जिसे कहा जाए कि फोकस कर रहा है, ठीक है। अब उसमें दीज आर दी सिलेरी मसल्स, ठीक है, दीज आर दी सस्पेंसरी लिगामेंट एंड दिस वन इज दी लेंस। सस्पेंसरी लिगामेंट्स होल्ड्स दी लेंस। अच्छा, ये वाला पोर्शन जो है, दिस वन इज दी आइरिस। ये जो है ये कॉर्निया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है ये है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। अच्छा, एक्वस ह्यूमर जो होता है इट्स वाटरी, वाटरी थिन, ठीक है, पतला वाटर, वाटरी थिन सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर जो होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर, ठीक है, विट्रस ह्यूमर होता है। और ये जो होता है ये विस्कस होता है। ये कैसा होता है? विस्कस होता है, थिक होता है, ओके। आई बेसिकली क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? सेंसरी नर्व फाइबर एंड कैन परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन वेल, एक्शन वेल। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आई जो है वो क्रेनियल नर्वस सिस्टम को फॉलो करता है, क्रेनियल नर्वस सिस्टम को फॉलो करता है। क्रेनियल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? डू नॉट फॉलो स्पाइनल कॉर्ड पाथवे। जो कुछ भी होता है ये डायरेक्ट यहाँ से ब्रेन को जाता है, डायरेक्ट विदाउट हैविंग इंटेलिजेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन से डायरेक्ट मैसेज मोटर नर्व फाइबर के थ्रू वापस इधर आता है, मोटर नर्व फाइबर और ये सेंसरी नर्व फाइबर। और ये टोटल जो होते हैं वो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स कहलाते हैं। Okay, now the lens changes shape to alter the direction of the light ray passing through the eye. Name another part of the eye that also alter the direction of the light ray. Which one? Can you tell me? Yes, it's the aqueous humor. You can write aqueous humor, conjunctiva, or vitreous humor. कोई सा भी एक नाम लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। The part of the eye where the light ray forms an image. Yellow spot. Okay. Okay, now this is another question related to the eye. An eye specialist measured the change in shape of the lens. Lens की shape जो है उसको change जो हो रही है उसको patient की उसको उसने observe किया है in an eye test. The specialist record the change in shape of the lens with the patient looking at a chart 10 meter away, यानी दूर से देख रहा है 10 मीटर अवे से, उस वक्त लेंस की क्या शेप है और उसमें क्या चेंज आया है। और एक जब वो करीब से बिल्कुल रख के जो है रीडिंग कर रहा है, तो वो दो जैसे कहा जाए डिस्टेंसेस में लेंस की शेप को देख रहा है। एक डिस्टेंट विजन देख रहा है, इसका डिस्टेंट विजन में देख रहा है लेंस की लेंस शेप एंड थिकनेस, और सेकंड में वो मेजर कर रहा है या देख रहा है नियर ऑब्जेक्ट विजन, distant object vision and near object vision, lens shape and thickness. अच्छा, हमने जो है आई के चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि there are two types of lenses and shape of the lenses followed by human eye. One is the convex lens, that means that is broad
at center and thin at edges. और एक जो है वो जिसे कहा जाए कॉन्केव शेप को फॉलो करता है। अच्छा, कॉन्केव शेप में क्या होता है? ब्रॉड एजेस और थिन सेंटर। ओके, ये जो लेंस है ये नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने में फॉर्म होता है, ठीक है, और ये जो है ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा, अब वो ये बोलते हैं कि ग्राफ इन्होंने बनाया है जिसमें ऊपर की तरफ जाता हुआ जो पोर्शन है वो ये बता रहा है मोर कॉन्वेक्स, दैट मीन्स कि यूं मोटा होता जा रहा है, और इसमें लेस कॉन्वेक्स यानी कि ये पतला हो रहा है, दैट मीन्स कि कॉन्केव शेप का हो रहा है। लेस कॉन्वेक्स का मतलब मोर टुवर्ड्स कॉन्केव शेप। This area is the intermediate state. Intermediate state means the distance is not very much far and not very much close. So it's more or less in between the convex and concave shape. Okay, write a letter D. हमें D letter बताना है to show the time when the patient was looking at the chart at 10 meter away. यहाँ पे भी आप बता सकते हैं और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, और दोनों जगह जो है वो करेक्ट होगा, उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। State how the ciliary muscles and suspensory ligaments act to change the shape of the lens during the time marked E. Ciliary muscles जो हैं E के ऊपर जो है करीब से करीब की नजर ज्यादा देख रहा है, दैट मीन्स करीब से जो है देख रहा है, तो सिलेरी मसल्स जो है वो जैसे कहते हैं कि रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स होंगे एंड रिलीज लेंस टू बिकम थिक इन सेंटर। Suspensory ligaments slacken, loose to give oval, round, more or less round shape. और चलो पैर अब से भी देखेंगे ज्यादा नहीं। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Outline how humans are able to see the colors by the help of cones. Cones have primary basic colors, of light, that is red, blue and green. The mixing of these three colors and carried to brain by optic nerve in the form of impulse, electrical impulse, make person capable to see the actual color of the object.